Now viewers, in a major breakthrough in the Saif Ali Khan stabbing case, the details have come out, and in the latest the Mumbai police has confirmed that prima facie the suspect and the key conspirator who has been arrested in the stabbing case, leaving the 54-year-old Saif Ali Khan severely injured with 6 wounds, has been arrested. And the Mumbai police arrested the man in the wee hours of Sunday. The attack took place on Thursday. The attacker is identified as a man from the origins of West Bengal. The accused has been caught from the bushes behind the Hiranandi estate in the Kasadwada in Thane, which is 35 kilometers away from the residence of Saif Ali Khan, who is Satguru Sharan. DCP Zone 9 Dikshit Gedam has revealed that the prima facie accused is a Bangladeshi, and after entering India illegally, he changed his name multiple times. He was using Vijay Das as the current name. He came to Mumbai 15 days back and stayed in Mumbai for few days and then in the vicinity of Mumbai. The accused used to work in housekeeping agency. Relevant sections of the Passport Act have been added to the case. He will be produced before the court for the police remand this morning, and saying that he was changing his name to avoid getting caught. He used to work as a housekeeping staff at Ricky's Bar in Thane as well. Mumbai police has been confirmed that the accused was using the names including Vijay Das, Bijoy Das and Mohammad Ilyas. Saif Ali Khan suffered multiple stab wounds, including one on his neck and near the spine. After the intruder entered his upscale Bandra home and attacked him, the 54-year-old actor, who was stabbed 6 times, was rushed to city's Dilavati hospital in an auto rickshaw, where he was bleeding profusely and then underwent emergency surgery. A 2.5-inch piece of the blade was removed from his spine after the 5-hour-long surgery. Javed Hussain, my colleague, is joining me for more. Javed, as we are also picking up these details that Mumbai police and the DCP of Zone 9 has confirmed, what is the next phase of the investigation that the police is now focusing on? Take us through the details. सारी नंगाई कर ली कि शरीकुल इस्लाम उर्फ शहजाद है, इसको अभी जानकारी के मुताबिक खाड़ पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जहां इसे इस वक्त जांच चल रही है। उसके बाद इसे कंसल्ट जो कोर्ट है वहां इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसे रिमांड के लिए उनकी कोशिश की जाएगी, यानी कि रिमांड पर लिया जाएगा शरीकुल इस्लाम उर्फ शहजाद को। उसके बाद तमाम वो चीजें जिसे जानने की कोशिश करेगी मुंबई पुलिस, जिसके सवाल का जवाब जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसीपी वेस्ट बांद्रा ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपके सामने रखा जा रहा है और जो बाकी जो जानकारी है वो अभी रिमांड के बाद ही, पूछताछ के बाद ही इसकी जानकारी दी जाएगी। कई ऐसे सवाल हैं। शरीकुल इस्लाम, जो कि मुंबई पुलिस ने बताया है कि 5 महीने पहले वो भारत में आया और ये बताया गया कि इलीगल तरीके से भारत में पहुंचा, और डीसीपी ने हालांकि ये कहा कि शक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हाँ कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है हिंदुस्तान का, पश्चिम बंगाल का। तो मुंबई पुलिस अब बांग्लादेशी एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश, अब मुंबई पुलिस ये मान रही है कि वो बांग्लादेश से जो है शरीकुल इस्लाम यहाँ पहुंचा है और यहाँ पर 15 दिन से वो रह रहा था और तकरीबन 5 महीने पहले वो भारत में दाखिल हुआ है। ये भी बताया गया कि इलीगल तरीके से वो भारत पहुंचा है। तो बांग्लादेशी एंगल, सैफ अली खान पर अटैक का मामला हो, उसके बाद अंदर कैसे दाखिल हुआ, किस तरीके का उसने रूट लिया, यहाँ से भागने के बाद वो कहाँ रहा, क्योंकि उसने अपने मोबाइल को बंद कर दिया था और मोबाइल बंद करने के बाद वो लगातार टीवी को ट्रैक कर रहा था और टीवी में एक एक इन्वेस्टिगेशन को देख रहा था कि मुंबई पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन शनिवार की देर रात, यानी कि रविवार के तड़के सुबह उसे ठाणे इलाके से गिरफ्तार किया गया है और वहाँ पर कई लोगों को पहले राउंड अप किया गया था। उसके बाद वहां से इसे एक झाड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि सैफ अली खान के घर पर वारदात के बाद ये वहां से फरार हो गया था, अपने फ़ोन को बंद कर दिया था। फ़ोन को बंद करने के बाद ये ठाणे इलाके में ही छुपा हुआ था। ठाणे इलाके का ही में ये पहले ही काम कर रहा था, एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए वहां पे जुड़ा था। इसके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं थे जिससे कि इसको परमानेंट कोई ऐसा काम मिल सके, तो इसलिए ये जानकारी के मुताबिक टेम्प्रोरी काम कर रहा था। और सैफ अली खान के घर पे अचानक ये क्यों पहुंचा, चोरी के इरादे से, और बांद्रा में ऐसे कई सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये वहाँ तक कैसे पहुँचा। अगर महज एक वारदात की बात करें तो
कि वो चलो वहां पहुंच जाओ, लेकिन ऐसे में इसके अलावा और भी कई सवाल है कि ये 11वें फ्लोर पे क्यों गया? अगर चोरी करना था किसी और फ्लैट्स में जा सकता था, किसी और फ्लोर पे जा सकता था। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अभी कुछ ही देर में साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी जानकारी के मुताबिक इसका मेडिकल होने के बाद इसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां से इसको रिमांड पे लिया जाएगा। एक हाई प्रोफाइल केस है सैफ अली खान का, क्योंकि जिस तरीके से सैफ अली खान पे अटैक हुआ और पूरा मामला सामने आया, करीना कपूर का स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया, इसके अलावा और भी तकरीबन 30 से 40 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सैफ अली खान के घर पे रहने वाली नर्स जो लीमा है उनके भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया था। उसके अलावा उस सोसाइटी में रहने वाले और आसपास के कई लोगों का मुंबई पुलिस ने तकरीबन 30 से 40 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। मुंबई पुलिस हर एक एंगल पे जांच कर रही थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा था, क्योंकि टेक्निकल बेस पर या टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर मुंबई पुलिस को कोई खासा क्लू नहीं मिल रहा था। इसलिए मुंबई पुलिस ने अपने लोकल इंटेलिजेंस यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को इनपुट को डेवलप किया और हर एक संभव, हर एक रूट को लेकर, हर एक एंगल्स को लेकर, हर एक वो जगह जहां पर वो जो आरोपी है, जो संदिग्ध था उस वक्त, उसको ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था। कई टीमें ऐसी थी जो मुंबई से बाहर भी भेजी गई और उसे महाराष्ट्र से बाहर भी कुछ टीमें गई थी इस पे कि क्या वो इस वक्त उसका रूट जो है वो बाहर तो नहीं है। तो तमाम एक लंबे समय के बाद, यानी कि 58 घंटे का ज़्यादा समय हो जाने के बाद मुंबई पुलिस को कामयाबी मिली है। और कुछ ही देर पहले मेरे पीछे डीसीपी ऑफिस जोन 9 या बांद्रा वेस्ट का है, जहाँ पर डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया, हालांकि ज़्यादा जवाब उन्होंने मीडिया का नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से डीसीपी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया का जवाब दिया, इससे ऐसा लगता है कि उनके पास कई सवालों के जवाब थे, लेकिन शायद वो इस वक्त नहीं देना चाह रहे हैं और वो उतना ही अभी बताना चाह रहे हैं जितना एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को लेकर होता है। जी, All right, Javed. Thank you very much for